स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल में पी कुमार क्लासेस में। तो दोस्तों आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो 10th क्लास का जो चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होता है, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होगी जो कि 2 वेरिएबल के अंदर होगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको ये आप देख रहे हैं, ये एक ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। दीज आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दोस्तों दिस इक्वेशन कैन बी फिट इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 वेयर abc इज रियल एंड a comma b does not equal to 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दोस्तों जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से कि जो इक्वेशन इस फॉर्म में फिट हो जाए उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और जहाँ पर ए बी सी हमारे रियल होंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात ये है, यदि हम टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो ए कोमा बी सदैव जो है आपका होगा ये 0 के इक्वल नहीं होगा, अदरवाइज हमारी इक्वेशन जो होगी वो टू वेरिएबल में नहीं होगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता क्या है। ए वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दोस्तों जो यहाँ पे आपका एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को, तब हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा एक्स और वाई का मान उस इक्वेशन का। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। दोस्तों हमारे पास एग्जांपल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1, इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 then this value put in first, we get 5 equal to 5, then left hand side equal to right hand side, hence x equal to 1 y equal to 1 is the solution of a given equation. Friends, we can check another value of x and y in this given equation. If we take x बराबर 1 y बराबर 7 put in first, then we get 23 equal to 5, which is not a statement. This is a false statement. So here x equal to 1 and y equal to 7 is not the solution. Friends, अब हम अगले एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। Romila wants to a shop and purchased 2 pen and 3 erasers for 9 rupees. Her friend Sonali say the new variety of pen and erasers with Romila, and she also brought 4 pen and 6 eraser of same kind for 18 rupees. Represent situation algebraically and graphically. तो friends, here we have to represent the algebraic and graphical situation of this question. तो firstly let us denoted cost of 1 pen by x and 1 eraser by y. Then algebraically representation will be, here he purchased 2 pen and 3 erasers for 9 rupees. So here 2x, because we denote the cost of 1 pen is by 1 by x. So 2x plus 3y equal to 9, which is our first equation. And same for Sonali, 4x plus 6y equal to 18
This is second equation. Then friends, here we solve these equations simultaneously. The first equation is this and second equation is this. So first we take that box. Firstly we put 0 in place of x in first equation. Here we get y equal to 3. After all, we put y equal to 0 in first equation. Then we get x equal to 4.5. Same here for second equation. Friends, here we put x equal to 0 in this equation. Then we get y equal to 3. And then we put 1 in place of y in this equation. Then we get x equal to 3. Friends, now we plot the graph of these equations because we have to prove that it's graphically representation. So here we have a graph. Firstly we have a point 0, 3. So in this graph we see that 0, 3 is here. Now 4.5, 0, which one is here? Then draw a line which is passing between these points. This is our equation number 1. And now 0, 3, which is also on that point. And now 3, 1. 3, 1 is here, which is also a line. Plot a line. Here we see that both lines are coincidence. Now this is the graphical representation of this question. दोस्तों, जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं उनसे हमने एक ये ग्राफ प्लॉट किया है. हमारे पहली इक्वेशन के जो पॉइंट थे वो 0, 2 एंड 4, 0 थे और दूसरी इक्वेशन के पॉइंट जो थे वो 6, 0 एंड 0, 3 थे. तो आपने यहाँ पे दोनों लाइन इनके जो पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली दोनों के, और दोनों को इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इनको नाम देकर ये आपका हो जाता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन. तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली मेथड. अब ग्राफिकल मेथड के द्वारा जो सॉल्यूशन हमें दिया जाता है किसी लीनियर इक्वेशन का, उसकी हम बात कर रहे हैं. तो दोस्तों यहाँ पे सपोज वी हैव 2 इक्वेशंस, देन दीज 2 इक्वेशंस गिव्स 2 लाइंस. तो दोस्तों जैसे मैंने आपको अभी 2 एग्जांपल कराए, वहां पे आपने देखा कि जो हमारी एक इक्वेशन होती है वो एक लाइन देती है हमको. लीनियर इक्वेशन जो होती है वो फिट होती है एक लाइन के अंदर. तो यहाँ पे आपका यदि आपके पास इक्वेशन है तो ये आपको 2 लाइन देगी. तो 2 लाइन मिलने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि कुछ केस जो होते हैं वे अराइज हो जाते हैं. अब केस नंबर 1 की बात हम कर लेते हैं. जो में 2 लाइन होगी वे इंटरसेक्ट कर सकती है किसी सिंगल पॉइंट पर. इंटरसेक्ट मीन्स यदि ये आपकी 2 लाइन है, एक लाइन ये आपकी है और एक लाइन आपकी ये है, तो ये किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई. तब हमारा इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, देन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. तब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा. दोस्तों अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं. द लाइन में बी पैरेलल. लाइन दोस्तों आपका माना एक लाइन इस तरह है, एक लाइन ये है. अब पैरेलल लाइन जो हमारी होती है
वह वे लाइन होती है जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती या आपस में किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलती। जैसे आप एग्जांपल ले सकती हो ट्रैक ऑफ रेल। रेल का जो ट्रैक होता है वो आपका पैरेलल लाइन को शो करता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इक्वेशन है, जो आपका इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे आपकी इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ये जो फॉर्म होगी ये होगी आपकी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। दोस्तों तीसरा केस, थर्ड केस की बात हम कर लेते हैं कि द लाइन में बी कॉन्स्टेंट। जैसे अभी हमने आपसे बात की थी, अभी इससे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमारे होते हैं और सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट इक्वेशन में होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारा, तो आइए दोस्तों इस बात कर लेते हैं इस एग्जांपल की। तो एग्जांपल में आपके पास दो इक्वेशन है और ग्राफिकली मेथड से इसको सोल्व आउट करना है हमको। तो एग्जांपल में दो इक्वेशन है। सबसे पहले हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन के। तो पॉइंट फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि सबसे पहले x को 0 रखो, y का वैल्यू फाइंड आउट करो, और y को 0 रखो तो x का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने x को 0 रखने पर हमें y का वैल्यू 2 मिलेगा, और सेकंड इक्वेशन मतलब फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू एक बार 0 रखने पे हमें 6 मिलेगा x का वैल्यू। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो इसकी मदद से हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया और एक ग्राफ में जो है लाइन वो हमने लाइन जो है फिर डाल दी। जो पॉइंट हमारे पास थे उनसे एक लाइन बनाई और लाइन खींची तो हमें देखा कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई एक पॉइंट 6,0 पर। यदि हमारा यहाँ पे 6,0 पे लाइन इंटरसेक्ट कर गई और हमने देखा था कि लाइन यदि इंटरसेक्ट कर जाती है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का वो होता है आपका यूनिक। तो हियर एट x equal to 6 and y equal to 0 equation is consistent and have unique solution। दोस्तों इसी के साथ ये एग्जाम्पल हमारा फिनिश हो जाता है। आइए दोस्तों अगले एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास ये दो इक्वेशंस है और इनको हमें सोल्व करना है ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल वही हमारा फंडा होगा। फंडा क्या कहता है कि फंडा हमारा ये होगा कि आप एक बार x 0 रखोगे, एक देन आप y 0 रखोगे। x 0 रखने पर आपका y का वैल्यू पता लग जाएगा और y 0 रखने पर आपको x का वैल्यू पता लग जाएगी। इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन के अंदर भी इस तरह करोगे। और दोस्तों हम जो है एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो दोस्तों हियर हम रफली एक ड्रा कर लेते हैं कि इस तरह कोई हमारे पास एक ग्राफ है। ये आपका जो है ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये एक ग्राफ है, हमने रफली ड्रॉ कर लिया। 0,1/8 कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा, ये आपका यहाँ पे होगा 0,1/8। दोस्तों -1.1/5 यहाँ पे होगा। इस तरह ये आप ड्रॉ कर लोगे तो ये लाइन आपने पास कर दी। इसी तरह आप सेकंड वाले के लिए भी आपका सेम पॉइंट है तो ये लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर को चली जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो गया। और इस कंडीशन में हमने आपको पीछे बताया कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा बताया हुआ समझ आया होगा। तो दोस्तों यूं ही बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो आप पोस्ट होने पर तुरंत देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में और लीनियर इक्वेशन का ही अगला जो हमारा लेक्चर बचा हुआ, मतलब इसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।